Fine. So, Satish, I hope you are able to see my screen, right? Yes, sir. Module third is correlated to the hybrid, not hybrid. You can consider it as a uh, VMware, sorry, virtualization with our on-premises and how we can utilize the feature of virtual machines with the help of Microsoft Azure portal because this is a combination of both the portal. इस केस में लाइक हमें ऑन प्रोमाइसेस का जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो क्लाउड का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो पोर्टल पे उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट सो वी आर गोइंग टू फॉलो द कोर कंटेंट ऑफ आवर एजी 800 और 800 के केस में आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू द वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल्स ओपन कर लेते हैं दिस इज हाइब्रिड एनवायरनमेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू go with this one. Okay, configure and manage hypervisor, right? So this is our agenda. But before that, you should clear about uh, virtualization. What do you think about the virtualization? Why did it come into the picture and which types of services we can manage with the help of virtualization? Virtualization is like managing the things on a single hardware for multiple instance, or we can say multiple operating systems on a single hardware to reduce the costing of taking multiple hardwares. We used to do a virtualization so that a small task or something which is very less work kind of systems we can able to manage on virtual systems so that we should not have to purchase multiple hardware systems for the users, and maybe you can say short-term requirements we can do it on virtualization, so it should not be giving a burden to the costing or taking new hardwares every time. So usually companies do the same thing for any less work or less short-term works which does not require much high-end graphics or high-end specification, which can be done with normal hardware requirements. So that we can able to do on virtualization, which will reduce the cost as well as the time to set up the things accordingly. Correct. Another thing that we need to add regarding the virtualization here we are going to talk about some advanced types of virtualization because we'll discuss about on-premises virtualization environment plus the containers, right? We are able to find over a Microsoft Azure portal related to the container, and on container is also applicable for on-premises. It's not mandatory कि हमें केवल cloud पे ही manage करना है. Containers Mhm. that we can use our on-premises resources as well. So first of all, let's talk about the base of virtualization because the basics of virtualization is really important for everyone. Virtualization is divided in two different parts. Like you can consider it as a hypervisor type 1, right? Hypervisor type 1 and hypervisor type 2, right? These two things required, type 1 and type 2. This is our responsibility. We should clear about the gap between both the type of virtual infrastructure. हाइपरवाइजर टाइप 1 को हम कंसीडर करते हैं एज ए बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, राइट? और विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है विच इज related to the bare metal virtualization. And the second is related to hypervisor type 2 और hypervisor type 2 की जो responsibility होती है which is considered as a hosted virtualization. इसको हम consider करते हैं hosted virtualization. As per the name suggests, the meaning of hosted virtualization जिसमें आपको बेस मशीन के ऊपर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, and with the help of third party applications you are able to set up the infrastructure, you are set up the virtual infrastructure for any company. 99% organization prefer to use hypervisor type 1. 99% Mhm. कंपनीज को जो सेटअप स्टैब्लिश करना होता है रियल एनवायरनमेंट के केस में दे ऑलवेज सेटअप विद हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर टाइप 1 की थ्रू ही मैनेज किया जाता है. अब Okay. इस केस में बेयर मेटल के केस में कई सारे ऐसे टूल्स हैं मार्केट में जो आपकी हेल्प करते हैं तो स्टैब्लिश अवर हाइपरवाइजर टाइप 1
जैसे सबसे पहला नाम इसमें आता है हाइपर वी का, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा आता है ESXi, आपने नाम सुना होगा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो VMware vSphere, और अभी ये ब्रॉडकॉम बन गया है। एंड थर्ड आता है जेन सर्वर। ठीक है, जेन सर्वर जो है विच इज प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक्स। अगर आप लिनक्स पे जाते हैं, ठीक है, अगर आप लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो लिनक्स के लिए अभी जो है वो है ओपन शिफ्ट, बट अर्लियर इट वाज ओपन स्टैक। अभी ये कन्वर्ट हो गया ओपन शिफ्ट में। ओके। these four applications can help us to set up our virtual environment। ये चार जो अलग अलग टूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं ना, इनकी हेल्प से आप हाइपरवाइजर टाइप 1 को स्टैब्लिश करते हैं, और इनको बेयर मेटल बोला जाता है। हमारा जो एजेंडा है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वी आर एबल टू फाइंड, we are going to talk about everything related to Hyper-V, because Hyper-V जो है वो प्रोडक्ट है अपने पास 365 का, and we are going to manage। तो सर अभी भी एनवायरनमेंट्स में हाइपर वी और ये जो फर्स्ट थ्री है उसका यूसेज ज्यादा होता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ गोइंग फर्दर इन फ्यूचर किसका ज्यादा मतलब यूसेज होने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स मे बी एंड ऑफ लाइफ, और मे बी इट्स लाइक गोइंग टू वर्क ऑन ओनली फॉर हाइपर वी और EXSI VMware, ऐसा कुछ है कंसेप्ट की दिस ऑल विल बी स्टिल वर्किंग एज इट इज लाइक इन फ्यूचर ऑल्सो। या सॉरी सतीश, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? सर ये जितना भी हाइपरवाइजर्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज VMware हाइपर वी या तो जेन सर्वर हम्म ओपनशिफ्ट, तो इसमें इन कमिंग फ्यूचर कौन सा ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, या फिर अभी कौन सा हो रहा है आगे कुछ ऐसा इसमें से कुछ क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन है किसी का कि सभी का इक्वली यूज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? मतलब न, न, कंसेप्ट क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसका कंसेप्ट क्या चल रहा है अभी, मतलब प्रेफरेंस कहाँ पे ज्यादा लोगों का कि कौन सा हाइपरवाइजर ज्यादा यूज में है या फिर ज्यादा यूटिलाइज होता है इन टर्म्स ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? जैसे एज्योर और AWS हम लोग बात करते हैं, तो मोस्टली हम्म, एज्योर का बहुत बड़ा बेस है, AWS का कुछ अलग बेस है लोगों का यूज करने का, तो इसमें वैसे कंसेप्ट इसमें क्या है लोगों का मतलब चॉइस करने का कि हाइपर वी यूज क्यों करेंगे या VMware की यूज करेंगे? नहीं नहीं, हाइपरवाइजर का क्रेज था इन ईयर ऑफ 2014 टू 2020। ठीक है, ओके। मैं आपको रीजन बताता हूँ, टेक्निकल रीजन व्हाई, लाइक एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट अप देयर एनवायरनमेंट विद हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। बिकॉज हाइपरवाइजर आपको दो ऑप्शन देता है। आपने नाम सुना होगा SCVM का, राइट? आपने नाम सुना होगा सिस्टम सेंटर का, राइट? आपने नाम हाँ, सुना यस होगा यस, फेल ओवर क्लस्टर का। ठीक है, करेक्ट है। best part with hypervisor, you don't need to pay any separate amount for the license and maintenance। ठीक है, ओके ओके। आपको कोई भी सेपरेट लाइसेंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है, जो भी वर्जन ऑफ सर्वर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप हम्म। आप उसका इस्तेमाल करके जो लाइसेंस होगा वही आपके हाइपरवाइजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ओके ओके। उस टाइम पे अपने पास दूसरा जो कॉम्पिटिटर था वो था VMware vSphere। VMware vSphere एक ऐसा टूल था जिसमें आपको हर एक सर्विस के लिए ना यू हैव टू पे द लाइसेंस। ESXi का ओके अलग लाइसेंस, vCenters का अलग लाइसेंस, और अगर आप vSphere क्लाइंट का इस्तेमाल करते हो ना, तो क्लाइंट का भी अलग लाइसेंस होता था। अगर 5 बंदे ओके। VMware का काम कर रहे हैं तो 5 अलग तरीके के लाइसेंस आपको परचेज करने पड़ेंगे। और इनका जो बंडल लाइसेंस आता था वो $2000 का आता था, विच इज हम्म। ईयरली बेसिस, राइट? बंडल लाइसेंस में वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब ओके। अगर हम
बात करें, अगर हम बात करें हाइपरवाइजर के केस में, तो हाइपरवाइजर कैन गिव अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, SCCM, SCVM, सिस्टम सेंटर एंड फेलोवर क्लस्टर। सो ये जो Okay. SCCM या SCVM की हम बात कर रहे हैं ना, SCCM एंड SCVM के केस में that help us to set up large infrastructure for virtualization। आप एक लार्ज इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के केस में। आप अपने बेस मशीन का हाई कॉन्फ़िगरेशन रखो, आप एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो उसपे, प्लस आप हाइपरवाइजर मशीन टू हाइपरवाइजर मशीन का क्लस्टर बना सकते हो। आप क्लस्टर अपने नेटवर्किंग के साथ साथ स्टोरेज का, वर्चुअल मशीन का भी क्लस्टर तैयार कर सकते हो, ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ आवर सर्विसेज है, वो उसका जो डाउन टाइम है वो लेस किया जा सके। Okay. क्लियर? सो इस वजह से Yes. हाइपरवाइजर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। बट अगर हम आज की कंडीशन की बात करें, तो जो टॉप मोस्ट पे चल रहा है ना, है वो है ब्रॉडकॉम। हाइपरवाइजर से ज्यादा जो कस्टमर है, दे द कस्टमर्स आर डूइंग सेटअप विद द हेल्प ऑफ ESXi। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि VMware रिसेंटली अभी लाइक एज अ हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेट कर रखा है, ठीक है। हर एक क्लाउड Okay. प्लेटफॉर्म में आपको डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाएगा, हाइपरवाइजर सॉरी VMware विद Azure, VMware विद गूगल क्लाउड, VMware विद Amazon वेब सर्विसेज। तो अगर आपके इंटीग्रेशन पास हाई ज्यादा हो कॉन्फ़िग, गया। इंटीग्रेशन ज्यादा हो गया, तो एक Okay. हाइब्रिड इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए वी कैन हाँ। we can use this environment, we can use this VMware environment um, Okay. to establish the infrastructure, क्योंकि ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करेगा। तो एक और आपकी चीज जो, मैंने सुना था। हाँ, बोलिए हाँ, सर, बोलिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वी कैन मैनेज हम्म। द रिक्वायरमेंट एज पर द वी कैन सेट अप ऑल द थिंग्स विद एज पर द रिक्वायरमेंट। सर मैंने जैसे कि अभी कुछ टास्क कर रहे थे ऑफिस में, सुना कि जैसे कि अपन कुछ भी माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि अभी क्लाउड पे है, उसको हम लोग को ऑन प्रोमाइस में करना है। वी आर रनिंग द VMs ऑलरेडी इन मे बी इन VMware और Hyper-V whatever. So in this scenario, what is like, we can say, without any downtime, किस एप्लीकेशन या किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसे कि हाइपर वी हो गया, VXA हो गया। अब हमको क्या करना है, VMs जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं हाइब्रिड में, उसको हम लोग को ऑनसाइट में मूव करना है, या हम्म फिर ऑनसाइट से हाइब्रिड में मूव करना है विदाउट एनी सिंगल डाउन टाइम। क्लाइंट ने बोला कि डाउन टाइम नहीं चाहिए। तो जब डाउन टाइम नहीं चाहिए बोलते हैं, तो while we move the data from migrating the data to on premise from the hybrid or hybrid to on premise to hybrid, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या फिर सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, मतलब हाइपर वी कर पाएगा या फिर EXA कर पाएगा? इन केस ऑफ माइग्रेटिंग सर्विसेज, राइट? यस सर, माइग्रेटिंग मतलब विदाउट एनी डाउन टाइम, अगले को पता नहीं चलेगा कि ये सर्वर कहाँ से कहाँ मूव हो गया, बैकएंड नहीं में नहीं अपना मूव हो नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यस। क्लाइंट को मालूम ना पड़े हमें। देखो, जब भी कोई माइग्रेशन का टास्क आप परफॉर्म करते हो, सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू जस्ट नीड टू टेक केयर अबाउट द मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज टू परफॉर्म द माइग्रेशन। आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आप किस मेथड के थ्रू माइग्रेशन कर रहे हो। जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे माइग्रेशन है ना, वो आपके दो सेटअप को इस्तेमाल करते हैं, एक ESXi को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हाइपरवाइजर को इस्तेमाल करते हैं फॉर द ओके। माइग्रेशन पर्पस, ठीक है। हम्म। अब जब आप माइग्रेट करना चाहते हो, you want to migrate the you want to perform the migration task from on premises to cloud, और जब हम्म। आप सेटअप को स्टैब्लिश करोगे, राइट, हम्म। जब आप सेटअप को स्टैब्लिश करोगे, तो इस सिचुएशन में what you need हम्म। to do, इस सिचुएशन में you are going to establish, right, uh, you are going to establish your platform for the migration purpose only। और उस सिचुएशन में what we need to do, इस सिचुएशन में आप पैरेलली दोनों सेटअप को कम से कम 10 दिन तक रन करेंगे। ओके। Parallelly, both setups you are going to establish for 10 days to verify, to manage हम्म। all the things are, all services are running properly। आपका ओके। सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे है, एक कॉपी आपके सर्वर की क्लाउड पे भी मूव हो चुकी है, राइट, एंड क्लाउड राइट पे सर। भी प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। तो आप एक टेस्ट यूजर को क्लाउड वाले सिस्टम से एक्सेस करोगे, और जो ऑन प्रोमाइसेस का सिस्टम है उसको आप AD से लॉगिन करके एक्सेस करोगे। सो दीज टू थिंग्स यू कैन मैनेज प्रॉपरली।
ठीक है, पैरेलली अगर Okay. आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक चल रही है, जो ऑन प्रोमाइसेस में सर्विसेज या रिसोर्सेज है वही सर्विसेज हमारी सही तरीके से पोर्टल पे भी रन कर रही है, एज्योर की वर्चुअल मशीन पे रन कर रही है या फिर एडब्ल्यूएस की वर्चुअल मशीन में रन कर रही है, एंड हाँ. टेस्टिंग के बाद आप अपने ऑन प्रोमाइसेस को क्या करोगे, डाउन कर दोगे। ऑन प्रोमाइसेस को आप क्या करोगे, डाउन कर दोगे, एंड यू आर गोइंग टू switch your user from on premises RDP to Azure virtual machine RDP, और उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला Okay. Okay. है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हम डाउन टाइम नहीं आने देंगे, और कोई भी माइग्रेशन आज की डेट में आप परफॉर्म करते हो ना, डजंट रिक्वायर्ड एनी डाउन टाइम। माइग्रेशन के केस All में right. कोई भी टास्क आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इतने सारे एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंट्स वी कैन इजीली माइग्रेट द सर्विसेज, डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन। हाँ, हाँ. डेटाबेस में कभी कभी ग्लिच आ जाता है, क्योंकि सिक्वल जो है बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, इसमें छोटी सी भी बैंडविड्थ का इशू जो है ना आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है, विच इज अ सेपरेट पार्ट, बट वर्चुअल मशीन और फाइल सर्वर के लिए आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। Okay. Okay. Got it, sir. क्लियर। तो ये हो गया Yes, sir. हाइपरवाइजर, ये हो गया हाइपरवाइजर टाइप 1, और दूसरा है हाइपरवाइजर टाइप 2। हमारा जो कोर टॉपिक है वो है हाइपर-वी, और इस हाइपर-वी में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आज की डेट में कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, Sure, sir. कंपनी में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने इन्वायरमेंट को हाइपर-वी का इस्तेमाल करके इस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें हाइपरवाइजर टाइप 2 की, तो हाइपरवाइजर टाइप 2 का कॉन्सेप्ट होता है विच इज कंसीडर्ड एज होस्टेड वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए। इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी डेस्कटॉप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसका Mm-hmm. कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, राइट इसका कॉन्फ़िगरेशन हो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेट अप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, right? And with the help of third party application we are going to set up a number of virtual machine. Let's take an example, अगर आपने इसका 32 GB RAM रख रखा है, the capacity of RAM is 32 GB and 6 core का आपने प्रोसेसर रख रखा है, and Mm-hmm. up to 1 TB of SSD, ठीक है, 1 TB की हार्ड डिस्क है इसमें। this is the core configuration, and let's talk more about the use cases और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। Now I'm just going to install थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विच इज पार्ट ऑफ हाइपरवाइजर 2। आपने नाम सुना होगा वर्क स्टेशन का, जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। Yes, दूसरा sir. वर्चुअल बॉक्स जो ओरेकल ने डिजाइन किया था, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, एक टूल लाया था विच इज वर्चुअल पीसी। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था, 2005 या Okay. 6 की बात कर रहे हैं, 7-8 में ये बहुत ज्यादा यूज होता था। So these tools, right, are VMware Fusion एक आया था, VMware का Fusion, right? जैसे VMware Workstation है ना, वैसे VMware Fusion आया था मार्केट में। These Okay. applications are considered as a best example for hypervisor type 2, क्योंकि ये आपका core hosted virtualization के पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। अब ये जो होस्टेड Okay. वर्चुअलाइजेशन है, पहले तो आपका ओएस रहेगा, इस मशीन के ऊपर आप एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करोगे, मे बी विंडोज 10 या विंडोज 11 या कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपके मेन कॉन्फ़िगरेशन का 20% स्पेस है वो आपका बेस मशीन कंज्यूम कर लेगा। 20 to 25% स्पेस जो है वो आपका बेस मशीन कंज्यूम कर लेगा, एंड आफ्टर दैट ये एप्लीकेशन के लिए अलग से स्पेस चाहिए। और फिर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जो आप वर्चुअल मशीन यूज करोगे ना, दीज वर्चुअल मशीन्स विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। ये जो बीएम्स है ना, इसका इस्तेमाल आप करोगे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए, नॉट फॉर अनदर थिंग्स। Okay. ऑल गुड। Yes, sir. सो इसका कभी भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वी ऑलवेज सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ bare metal, or you can say that hypervisor type 1। hypervisor type 1 की हेल्प से हम अपने environment को सेटअप करते हैं। Now these all are the services that we can use to establish our hypervisor। what are the things that we need to clear in case of hypervisor? जब भी आपको like we need to establish a hypervisor environment, तो कुछ चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, like configure Hyper-V, and always try to set up Hyper-V using server operating system, ठीक है ना। You always try to set up your hypervisor using
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो विंडोज बेस्ड मशीन है ना, जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 बेस्ड सिस्टम हो गए ना, अगर आप इन पे हाइपरवाइजर सेटअप करोगे, सो दैट विल नॉट अलाउ अस टू सेट अप क्लस्टर। ये आपको क्लस्टर का ओके ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप एससीसीएम या सिस्टम सेंटर का को इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, ओके ओके। राइट? आप टीमिंग नहीं कर पाओगे, आप फेल ओवर नहीं बना पाओगे। सो ये सर्विसेज क्लाइंट के लिए हम्म। नहीं है। क्लाइंट में माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए रख रखा है हाइपरवाइजर का फीचर, ताकि अगर आप नंबर ऑफ वीएम क्रिएट करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि कभी आपको लिनक्स पे काम करने की जरूरत पड़ती है, कभी आप विंडोज पे काम करते हो, मल्टीपल ओएस चाहिए, हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, बट एक मशीन में मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करके यूज करना है, तो हाइपरवाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आप श्योर सर। सर्वर में हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड? सबसे पहला काम होता है, डेफिनेटली दिस इज द टाइप ऑफ रोल, इंस्टॉल रोल ऑफ हाइपर-वी। आपको अपने सर्वर में हाइपर-वी का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, once you install the hypervisor role, you will get the access of Hyper-V admin panel, Hyper-V admin center. ठीक है? So admin center just like as a platform where we can set up our virtual machine. Number third, our responsibility to manage वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है? सो जब आप वर्चुअल नेटवर्क की बात करते हैं, तो बेस मशीन में जैसे आप नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए आप मल्टीपल मेथड का इस्तेमाल करते हो, वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने एनवायरनमेंट में सिस्टम को स्टैब्लिश कर लेते हो, राइट? ऐसे ओके ही यस सर। क्लाउड के केस में क्या होता है, सॉरी वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन के केस में आपको वर्चुअल सेटअप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यू नीड टू स्टैब्लिश वर्चुअल सेटअप। श्योर सर। सर हम सर ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो स्विचिंग का कंसेप्ट है वो कैसे यूज होता है? हेलो? हाँ यस सर। हेलो। ठीक है। सो आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। सर ये हम जब वर्चुअल नेटवर्क का यूज़ करते हैं हाइपर वी में, तो जैसे कि फिजिकली हम लोग नेटवर्क स्विचेस और इसका सब यूज़ करते हैं बेसिकली टू कनेक्ट वन सर्वर टू क्लाइंट सिस्टम। तो हम्म। इसमें हम लोग वो स्विच का जो कंसेप्ट है, मतलब एक फिजिकल स्विच को वर्चुअली मैनेज करना, जैसे कि हम लोग इनसाइडर वीएम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो उसमें वो कैसे काम करता है, मतलब कंसेप्ट हाँ क्या है हाँ, उसका? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसी पे हम आ रहे हैं। मैनेज नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क के केस में आपको क्या चीजें मैनेज करनी पड़ेगी? ओके। सबसे पहले जो वीएम का अडेप्टर होगा, यू नीड टू टेक केयर द अडेप्टर, क्योंकि आपका बेस मशीन का अडेप्टर एक ही है और उसके अंदर आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा, लोड पड़ेगा। हाँ। और दूसरा होता है मैनेज वर्चुअल स्विच। जो स्विच आप फिजिकली मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल की बात करते हो, कि ठीक है अपने पास L2 स्विच, L3 स्विचेस अवेलेबल है, एंड विद द यस हेल्प सर। ऑफ these switches we are able to control and manage all the traffic as it is over a virtualization like hypervisor का इस्तेमाल करके you can easily set up multiple virtual switches। इसमें प्राइवेट पब्लिक स्विचेस मिलेंगी, प्राइवेट पब्लिक है, सो द नेम स्विचेस। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि पब्लिक के केस में हो सकता है कि हम बाहर जो फिजिकल कंप्यूटर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकें, या ओके आप प्राइवेट के केस में आई डोंट वांट टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन। जितने भी नंबर ऑफ वीएम्स हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं, सिर्फ वर्चुअल मशीन से ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो विच इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट स्विच। प्राइवेट स्विच। अब इसके लिए सेटअप की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 16 GB रैम बेस्ड आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, राइट? 16 GB इज इनफ टू सेटअप हाइपरवाइजर इन्वायरमेंट। और प्लस द मशीन दैट यू आर गोइंग टू यूज, right, whatever operating system that you are going to use to set up your hypervisor environment, कोशिश आपको करना है कि आप सर्वर मशीन ही इस्तेमाल करो, राइट? क्योंकि सर्वर विल प्रोवाइड यू डेडिकेटेड स्पेस एंड मोर फीचर्स इन हाइपरवाइजर मैनेजमेंट इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल विंडोज 10 और विंडोज 11 मशीन। ठीक है? ओके। प्लस the machine that you are going to use that doesn't contain any hypervisor type 2 based application। जैसे मैं अभी जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जो जिस पे हमने आपका पूरा सेटअप बना रखा है, जिसमें हमने बैकअप वगैरह का टास्क परफॉर्म किए, एडीडीएस के टास्क को परफॉर्म किए, ये मशीन ऑलरेडी एक हाइपरवाइजर टाइप 2 के एप्लीकेशन को कंटेन करके रखा है, विच इज VMware वर्कस्टेशन, है ना? ये ऑलरेडी VMware वर्कस्टेशन इस पे हमने इंस्टॉल किया है। अब अगर मैं इस मशीन पे
हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल हाइपरवाइजर इन द सेम कंप्यूटर, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ये हमें एरर देगा दैट यू नीड टू रिमूव इट। आपका सिस्टम ऑलरेडी एक वर्चुअल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू इंस्टॉल अनदर हाइपरवाइजर virtualization application. So it will not allow us. Just need to click on open our control panel, क्योंकि Windows 11 मशीन है तो इसमें रोल्स Yes, एंड sir. फीचर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, और ये जो हाइपरवाइजर है ना ये अनचेक है अभी। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक मार्क हाइपरवाइजर मैनेजमेंट टूल और हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, दो एप्लीकेशन इसके अंदर बिल्ट इन आएंगे। आप इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप जब स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे ना, इट विल गिव अस अ ऑप्शन to open the hypervisor management wizard. Mandatory to restart, not an issue. I'm just going to restart and we'll connect it again. और फिर let's see how it's look like, hypervisor किस तरीके से दिखता है। But although I'm going to set up our hypervisor for practical in server operating system, ये जो मशीन है ये हमारा Windows 10 है। I will Yes. install another operating system on the same computer. इसी मशीन में मुझे एक और OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, डुअल बूटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हमारे Uh-huh. बहुत सारे सेटअप बने हैं, तो आई डोंट वांट टू लूज दिस सेटअप। तो डुअल बूटिंग क्रिएट करके हम एक सर्वर बनाएंगे जिसपे कोई भी थर्ड पार्टी हाइपरवाइजर टूल इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, दैट यू कैन directly install your hypervisor to set up multiple VM with different types of networking. We Correct. started our virtual machine और ये tools already available है workstation का, हम यहाँ पे open कर लेते हैं। We just need to open the hypervisor, क्योंकि भी recently हमने क्या किया, we successfully installed hypervisor in this machine. So open hypervisor tool management, आप directly search भी कर सकते हैं। You just need to open Hyper-V management. This is the manager panel and you are able to see how it's look like, ठीक है। तो ये आपका डेस्कटॉप हो गया, ये मैनेजमेंट पेज हो गया। इसके राइट पैनल पे यू आर एबल टू सी मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, और इसमें हो सकता है कि कम ऑप्शन मिले, सर्वर में कुछ ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। Correct, sir. नंबर ऑफ टूल्स आर अवेलेबल दैट यू कैन यूज टू सेट अप योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। अभी जैसे सबसे पहला पार्ट है इंपोर्ट वर्चुअल मशीन या क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। स्टॉप, एडिट, वर्चुअल सैन का ऑप्शन दिया है, वर्चुअल स्विचेस, स्विच मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन आप सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे या हाइपरवाइजर पे जो मशीन अवेलेबल है लाइक द कंप्यूटर नेम है उस पे क्लिक करके आप न्यू पे क्लिक करके जो भी सेटअप आपको बनाना है, जैसे मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, सो आई कैन गो विद दिस वे, जैसे VMware वर्कस्टेशन पे स्टैब्लिश किए थे। Type the name of VM, like let me select Windows 10, this is the name of computer where you want to store, है ना। अब by default ये C drive को consume कर रहा है, but if you feel I don't have enough space in C drive, तो you can change the location of your drive। तो I want to identify how much space available in my machine, तो 76 GB के आसपास available है, which is enough to create virtual machine। I don't want to replace or change the location। We are able to see two different options, hypervisor जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर बायोस। अगर आप जनरेशन 2 Okay. पे जाते हो तो वीएम के अंदर भी आप यूईएफआई बायोस का इस्तेमाल कर पाओगे, Okay. Okay. ठीक है। 32 बिट और Yes, 64 sir. बिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सॉरी, 32 बिट आपके जनरेशन 1 के लिए है, 64 जनरेशन 1 के लिए है, लेकिन जनरेशन 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 64 बिट को सपोर्ट करेगा। और द Okay. बेस्ट पार्ट, you can get the access of your BIOS in UEFI format। इसमें क्या मिलेगा आपको, लेगेसी मिलेगा। लेगेसी BIOS is a kind of old BIOS। Yes. हम प्रोसीड करते हैं। दिस इज द रैम साइज। तो रैम साइज वी हैव इनफ स्पेस सो वी कैन इंक्रीज इट अप टू 3.5 GB का रैम हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज डायनेमिक एंड मैंडेटरी टू कनेक्ट डिफॉल्ट स्विच, क्योंकि अभी अपने पास कोई स्विच नहीं है, फिर हम अपना खुद का स्विच क्रिएट करेंगे एंड विल मेक Okay. चेंजेस विद स्विच। तो डिफॉल्ट स्विच में अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ नेटवर्क, आपको अडेप्टर ही Sure. नहीं मिलेगा। एंड 127 GB एक विंडोज 10 के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड कस्टमाइज 25 GB इज इनफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब देखिए कॉर्नर पे
जो एक्शन सेंटर है ना, वहां पे भी आपको कॉर्नर पे वीएम से रिलेटेड सारी सेटिंग्स या सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं. बट व्हाट डू यू थिंक, आर बी एबल टू टर्न ऑन दिस वीएम, और क्या हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे? So let's try to double click and start it. We are able to turn on. Okay, I wanted to add one more point because earlier I gave you one information कि अगर आपके पास VMware वर्कस्टेशन है और हाइपरवाइजर दोनों इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? Yeah. But we have a limit for this particular kind of settings. I am using my Core i5 processor और ये 14th जनरेशन है, Okay. ठीक है? Core i5 and 14th Mhm. जनरेशन, the latest one. अगर Okay. आप Core i3, Core i5, Core i7 यूज करते हो टिल 6th जनरेशन, देन आपका Mhm. प्रोसेसर डुअल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, Okay. Okay. ठीक है? आप डुअल वर्चुअलाइजेशन को एक मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द फीचर, ठीक है? Correct. The latest version of CPU, the latest core-based CPU will definitely allow us to install more than one virtual infrastructure Mhm. to create n number of VMs. सिंपल ऑप्शन आ गया यहाँ पे. ओएस तो है नहीं, तो वी नीड टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें क्या करना होगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करना पड़ेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आएगा? आईएसओ इमेज से आएगा. दिस इज द लिस्ट ऑफ योर हार्डवेयर. आप जाएंगे किसमें? सीडी डीवीडी में, because we are going to provide the path of ISO image जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. आप ब्राउज पे क्लिक करो, ये आपके बेस मशीन पे जाएगा. मैंने सॉफ्टवेयर में सारी ISO इमेज रख रखी है. ओएस इमेज में जाकर के विंडोज 10 लाइट वेट है, इसको हम दे देते हैं 3.5 GB रैम हमने दे रखी है इसमें, ठीक है? आई एम गोइंग टू Okay. अप्लाई एंड ओके एंड प्लीज रीस्टार्ट. आप इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर दो. एंड बूट इट फ्रॉम सीडी जो हमने कनेक्ट दिया है ना, उससे आपको बूट Mhm. कराना जरूरी रहेगा. एंड नाउ यू कैन फॉलो द स्टेप्स. आपको यहाँ पे सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. बेसिक यू कैन इंस्टॉल इट. फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट मोर देन वन वर्चुअल मशीन, ताकि आपका जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट रहेगा हाइपरवाइजर के केस में, दैट यू Yes, कैन sir. इजीली मैनेज. आई डोंट हैव अ की, आई डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी की. एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज प्रो, क्योंकि कल की डेट में अगर आपको डोमेन ज्वाइन करना पड़ गया तो दैट यू कैन मैनेज, राइट? तो Okay. नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं. इट विल नॉट टेक मच टाइम क्योंकि मैंने इसको एसएसडी में रख रखा है. सो इट विल like take hardly 5 minutes to get our virtual machine is ready to use. And now what are the things that we need to cover? पहले VM की सेटिंग, Mhm. connect, setting, turn off, shut down, save your VM, pause your VM, reset your VM, checkpoint your VM, revert your VM, move, export and rename. ये सारी सेटिंग्स आपकी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है. बाकी सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, राइट? यहाँ पे हमें Yes, बात sir. करनी है चेक पॉइंट के बारे में. चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट इज अ स्नैपशॉट. हाइपरवाइजर Okay. में चेक पॉइंट के कंसीडर करते हैं. एज्यूर पे स्नैपशॉट बोला जाता है और VMware में स्नैपशॉट बोला जाता है. अब अगर ये कंडीशन है 16%, आई डोंट हैव अ टाइम बिकॉज आई वांट टू जंप ऑन अनदर कॉल, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, Mm. यहीं पे इसका चेक पॉइंट ले लूंगा, ठीक है? Okay. या यहीं पे मैं इसको पॉज कर दूंगा, Mm. ताकि नेक्स्ट टाइम जब मशीन को टर्न ऑन करूँ तो वो हमारा यही 25% से या 26% से ही हमें विजिट प्रोवाइड करें एंड वी कैन गेट द एक्सेस. इज दैट तो ओके? ऐसा कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेट पॉज का ऑप्शन है. दिस इज वर्चुअलाइजेशन मोर कस्टमाइजेबल. बट एक बार बूट होने बेस के बाद वो उसको स्टॉप कैसे करेंगे, मतलब वो नहीं नहीं नहीं, हम स्टेट को. I'm going to pause it, pause on the same page. ओके. और उसके बाद बंद कर दो, कोई इशू नहीं. जब आप ऑन करोगे यहीं से मिलेगा. ओके, दैट इज पॉसिबल. मतलब ये VMware में भी ऐसे ही काम होता है, सेम जिसमें इसमें जैसा हो रहा है अभी. नहीं, VMware पे ESXi पे काम होता है. वहां पे पॉज VM को तो कर सकते हैं बट आप ESXi को बंद नहीं कर सकते. बट यहाँ Hyper-V में कर सकते हैं. हाइपरवाइजर में कर सकते हैं.
ओके, बट जो सेटअप जो है ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ VMware वर्कस्टेशन ओनली, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि बोथ फीचर वाइज कुछ बोथ डिफरेंस होगा। प्लेटफॉर्म कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मैन पावर, सिंपल सी बात करें तो, ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिड्यूस द मैन पावर एंड कॉस्ट। बट ये लाइसेंसिंग कॉस्ट इसमें नहीं रहता है हाइपर-वी में, और इसमें उसमें रहता लाइसेंस है। नहीं है ना, दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे होते हैं, जिन्होंने अभी हम्म। स्टार्टअप रन किया है और वो सर्विसेज भी अच्छी चाहते हैं, बट डेफिनेटली कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता इमीडिएटली कि बहुत सारा कोई नहीं पैसा लगा लगा रहा, दे कोई नहीं वर्चुअलाइजेशन लगाता में, है। है ना। यस। तो उस केस में बंदा ऑलरेडी सर्वर का पे कर रहा है, तो वो सोचेगा कि हम जो सर्वर मशीन है उसी का वर्चुअलाइजेशन हम इस्तेमाल करें, दैट वी कैन हाँ हाँ। मैनेज द वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सर एक तो आखिरी क्वेश्चन ये, अब जैसे हमने सर्वर ऑलरेडी परचेज किया, हाई एंड सर्वर है, हम उसमें हम्म, ऑलरेडी डेटा फाइल सर्वर बना के रखे हैं, उसको एडी मैनेज कर सब कुछ है उसमें। अब हम लोग को अगर एडिशनल कुछ सर्वर ऐड करना है, देन वी कैन, जैसे छोटे छोटे सर्वर, ज़्यादा बड़े नहीं, तो हम लोग उसमें वीएम हाइपर व्यू इंस्टॉल करके उसमें वीएम यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल शॉर्ट टर्म, और मे बी फॉर स्मॉल रिक्वायरमेंट्स वी कैन डू दैट, राइट? कैन यू प्लीज अगेन रिपीट। सर जैसे कि हम ऑलरेडी एक डीसी यूज कर रहे हैं, एडीसी मतलब नॉर्मल जो मेन डीसी होता है, डोमेन हाँ। और फाइल सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब उसमें हम लोग को एक और सर्वर का रिक्वायरमेंट है कि छोटा शॉर्ट टर्म है या फिर छोटे टीम के लिए चाहिए एक अलग सर्वर टाइप का, देन वी कैन यूज द सेम सर्वर टू मेक हाइपर वी एंड क्रिएट मल्टीपल सर्वर इनसाइड दैट, राइट? जब तक हार्डवेयर आ, सपोर्ट करेगा। देखो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट इसमें कभी भी रेकमेंड नहीं करता, है ना, ओके क्योंकि ओके। एडी के पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। है ना। तो जो हाइपरवाइजर का सेटअप रहता है, आप एडी भले से हाइपरवाइजर में इंस्टॉल करो, ओके। बट आप गॉट इट। एडी के अंदर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके भी इस्तेमाल करोगे तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि रिस्की पार्ट जितने है। भी आप, ओके। हाँ, प्रोजेक्ट जितने भी आप हैंडल करोगे ना, तो आपको एक हाँ, डेडिकेटेड मशीन मिलेगा विद हाइपरवाइजर। विथ हाइपर, ओके। आप डायरेक्टली इस मैनेजर वीएमवेयर हाइपरवाइजर मैनेजर के पेज पे जाओगे आप, ओके, एंड जो तो भी उसमें टास्क सर्वर परफॉर्म नहीं करना है मिलता यू हम कैन लोग मैनेज को? ऑन दिस। सॉरी। सर्वर नहीं मिलता है, डायरेक्ट हाइपर वी का मेन पे आएगा उसके सामने में, और कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्टली, और वहीं पे सारे ओ, आपके सर्वर्स लगे रहते हैं। अभी तो हमारे पास एक गॉट इट। वीएम है ना, यू विल हाँ सी द हाँ। लिस्ट ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ओके ओके, गॉट इट सर। ठीक है, वर्चुअल मशीन इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज। द बेस्ट पार्ट विद द हाइपरवाइजर वीएम, आपको इसमें ना कोई वीएमवेयर टूल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपकी वीएम रेडी, यू कैन स्टार्ट यूजिंग सर्विसेज। आप इसका यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करोगे। हाँ, जो चैलेंजेस आते हैं वर्चुअल सेटिंग्स में। ओके। Our responsibility to manage our hypervisor virtual machines, मे बी क्लाइंट आपको बोलेगा कि कैन यू प्लीज चेंज रैम, चेंज स्टोरेज, ऐड मोर स्टोरेज, ऐड मोर रैम, प्रोसेसर का कोर कम है, आप प्रोसेसर का कोर बढ़ाओ, राइट। यस। स्विच आप कौन सी यूज कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज द स्विच। हमें इसका नेटवर्क चाहिए सेपरेटली, हमें इसको दूसरे क्लस्टर से अटैच करके रखना है, दैट आई कैन मेक श्योर अवर क्लाइंट कि भाई ये जो हम सिस्टम आपको बना के दे रहे हैं वो 24/7 आपके पास रहेगा। 90% इसकी अवेलेबिलिटी है, फेल ओवर जो है वो 90% है। तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं इसकी बहुत सारी कॉपियां बना करके क्लस्टर पे रख रखा हूँ। इसमें कोई इशू आएगा तो दूसरे क्लस्टर से हम आपके बीएम को फॉरवर्ड कर देंगे, हमने चेक पॉइंट बना रखे हैं। कल की डेट ओके। में अगर कोई आप अपडेट करते हो, पैचिंग करते हो, पैचिंग के बाद से बीएसओडी आना स्टार्ट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन इजिली revert back our virtual machine from checkpoint. So I'm going to share you the kind of components या सर्विसेज जो हाइपरवाइजर के लिए होनी चाहिए। तो अब जो आप अपनी सीवी में ऐड करोगे ना, वो आप एडी के साथ साथ, बैकअप के साथ साथ, जीपीओ और डोमेन एप्लीकेशन के साथ साथ कंटेनर और हाइपरवाइजर भी ऐड करोगे, ठीक है। ओके। एक कंटेनर ये होता है कि आप क्लाउड से ले लो, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, एज्यूर का, एडब्ल्यूएस का, दोनों पोर्टल आपको कंटेनर्स देते हैं, ठीक है। एक कंटेनर आपको ये होता है कि यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द कंटेनर टूल and install on your base machine, and you can use your container to enhance your productivity। मतलब जो टास्क हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं ना कंटेनर से, हाँ। ये टास्क आपका बल्क में हो जाएगा। ओके ओके।
तो Are कंटेनर we के लिए हम लोग को एड्स स्टोरेज जो हम लोग ऐड करेंगे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे नैस हो सकता है, चाहे सैन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है जो कंटेनर हम लोग यूज करेंगे फिजिकली जो यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कंटेनर आप टूल की तरीके, एजूर पे एक एकेएस होगा, आपने नाम सुना होगा, एजूर कुबरनेटिस सर्विसेज। ओके ओके, हाँ। करेक्ट। एडब्ल्यूएस भी एकेएस होता, एकेएस एडब्ल्यूएस कुबरनेटिस सर्विसेज होता है। ओके ओके। चलो, बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट वी नीड टू प्रोवाइड। अगर आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन बस मशीन है ना, तो हाइपरवाइजर थोड़ा सा लाइट वेट है वीएमवेयर वर्कस्टेशन के कंपेयर में। ओके। वीएमवेयर वर्कस्टेशन क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, पहले वो अपने लिए स्पेस बनाएगा और फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन का स्पेस अलग कंज्यूम करेगा, हाँ करेक्ट। राइट? तो यस। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में, मतलब अगर आपको हाइपर कोई भी प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन गो विद दिस टू ऑप्शन। ठीक है, सो कैन यू प्लीज गो थ्रू द ऑल पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। नहीं सर, हाइपर-V के बारे में बताया, बेयर मेटल टाइप 1 टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन के बेस लिए क्या क्या बेस बेस स्टेप्स चाहिए। बेस से स्टार्ट करो, है ना? बेस से स्टार्ट करो, जस्ट नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट बिटवीन द हाइपरवाइजर टाइप 1 एंड टाइप 2। इन दोनों को यस सर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद सेटअप का प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग। Today, सर। maybe tomorrow, I'm going to install second operating system on same machine, ताकि मैं आपको क्लस्टर वगैरह, फेलोवर क्लस्टर वगैरह के बारे में गाइड कर सकूं, क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सिस्टम सेंटर करके एक टूल आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ओके। वो कंटेंट का पार्ट है तो आई डेफिनेटली सेट अप ऑल दैट। ऑल श्योर सर, गुड? श्योर, हाँ। ओके ओके, क्लियर सर। ठीक है, सो आई अपलोड द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन फाइंड द रिकॉर्डिंग फ्रॉम सेम लिंक, एंड ओके। ऑल्सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑन फ्राइडे, है ना? श्योर सर। और फिर इसमें हम 2 वीएम क्रिएट करेंगे, नेटवर्किंग वगैरह, नेटवर्किंग का पार्ट कर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे, लाइक ओके। अपकमिंग फ्राइडे। या श्योर सर, विल डू। कूल, थैंक यू, टेक या केयर, बाय थैंक बाय। यू, वी थैंक आर यू सर। गोइंग टू कनेक्ट ऑन फ्राइडे। या थैंक यू।